अपेक्षा रखिए कि आप लोगों का जीवन में वो चीज़ भी इम्पार्ट हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब इम्पार्टेशन होता है तो बहुत सारा चीज़ जो ईजी हो जाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। और जो अगर हम लोगों का ऑनलाइन जा रहा है, क्या ऑनलाइन जा रहा है? ऑनलाइन जा रहा है, नेट नहीं है ना? ओके, एनीवे बाद में हम लोगों को जो देखेगा कि रिकॉर्डिंग होके हम लोग अपलोड कर देंगे। और जो हम लोग को देख रहा है, आप लोगों को भी हम लोग वेलकम करना चाहते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग एक बार आँख बंद करके हम लोग प्रार्थना करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। Father, we thank you so much once again for this beautiful day, Lord God, hallelujah. And thank you, Lord, hallelujah. We thank you for your mercy and grace. We thank you, Lord. We thank you. You have been so good, Lord, hallelujah. Even we thank you, Lord, for this breakthrough conference, oh Lord God, hallelujah. And we know that you are going to do something great, Lord God, hallelujah. And we know that you are going to impart, oh Lord God, the grace and Lord God, hallelujah, the wonderful things that you place, oh Lord God, hallelujah, in store for this church and for these people, Lord God, hallelujah. We thank you, we thank you, we thank you, we thank you. Oh, hallelujah, hallelujah. We yell to the Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you and thank you so much to revealing Jesus more and more. And broshak and draw us closer to him, Lord God, hallelujah. We thank you, Lord, once again. We thank you. Broshakalama zendela broshike mandala rama zemanguru sikiandala rabrana mamam. We honor your presence, Jesus. We honor your presence, oh Lord God. We honor your presence, oh Lord God, hallelujah. You are so beautiful, you are so wonderful, oh God, hallelujah. There is no one like you in all the universe, Lord God. Oh rabro shakala mande rebro shekeriala nama mama blana masu limbro shekeriala nama. As we worship you, Lord God, we pray that you enthrone in our praise and worship, Lord God. Libro shikiala masu prokosele ramambaria sekeriala zemana nama sekela mandolo bro shekeriala nama. We thank you, Jesus. Have your way, Lord God. Have your way, oh Lord God. Let every heart be saturated with your presence today, Lord. Simohontoro vikadana mastolo. Bless to namande. Thank you, Lord. We give you glory. All the praise. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Good morning, everyone. Let's give this time to the Lord. No? I always repeat that the word is for us, but the worship belongs to God. Worship belongs to Him alone. Amen. Hallelujah. Let's rejoice. Let's rejoice in His presence. Let's count His goodness over our life. We welcome you, Lord. We honor your presence in this place, Lord. You're beautiful, Lord. You're beautiful, God. You are the reason of this gathering, Lord. We give you the highest place, Lord. Yes, Father, Lord. Thank you for your spirit in this place, God. Thank you, Father, Lord. Hallelujah. Are you ready to worship the Lord? Are you ready to worship the Lord? Let's sing His goodness in this place. Amen. Projection is there. Let's sing with you, along with us. झुमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झुम झुम झुमर झुमा झुम झुम झुमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झुम झुम झुमर झुमा झुम झुम झुमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झुम झुम झुमर झुमा झुम झुम झुमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे oh, 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 oh.
देता हूँ तुझे, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उच्चा मेरे बंधु तू खड़े होके चल, यीशु नाज़री के नाम से। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ हो पुकारा तू बाहर निकला, मुर्दा उठरा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ हो ओ हो आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, झूमो समा, यीशु के लिए झूमो सब। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। गाओ जनकर गाओ, बजना में कृष्ण के नगर गाओ। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। Hallelujah. How many of you know the song already? Okay, let's sing this line. This is very easy. Oh, 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 oh. यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो खबर बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा तो बाहर निकला, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ हो ओ हो and say, be free, be flexible in the presence of the Lord, be receptive. No? Hallelujah. Let's say एक सेना खड़ी हो रही है. Amen. Even if you don't know the lyrics, you can move with the music.
खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का शुभ समाचार मिल रहा है, यीशु का राज्य बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। राज्य का सुसमाचार मिल रहा है, यीशु का राज्य बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। We sing एक दिन, एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। Hallelujah.
खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। Hallelujah. Let's all praise bring to Him. Him alone. Amen. Let's worship Him. Hallelujah. We give you worship, Lord.
सारे आदर और महिमा के लिए तेरे नाम को उठाते, तेरे नाम को उठाते। ओ शरारा रे, ओ रबाबा रे, ओ ला 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 रे, केवल तू योग्य सारे आदर और महिमा के, क्योंकि तू भला है। Because you are good, Lord. Your thoughts are good towards me, Lord. It's Father, I acknowledge, Lord. There's no one like you. Yes, Father, once again we give our heart, God. Hold it, mold the way you want. Yes, Father. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। Elohim, Araduna, Adonai, Araduna, Yeshua, Araduna, El Shaddai, Araduna, Elohim, Araduna, Adonai, Araduna, Yeshua, Araduna. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। Adonai,
Yeah. Let's make a joyful noise for the Lord. Oh, ra, 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 yeah. Yeshua. Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua. I just remember the Lord, the way you are molding me, God. And I'm grateful, God, Lord. I'm grateful, God. There's nothing through which I can measure your grace, Lord. Hallelujah. You are beautiful, God. You are beautiful. Your thoughts are beautiful, just me. You never leave my side. Oh, shaka ba 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 re. Oh, la 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 re. मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। Elohi Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Adonai Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana. Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Adonai Aradhana, केवल तू योगी है। El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana. Yes, God. You are the reason of this gathering, God. We expect more. We expect more. It's all about you, my God. Yes, God, Lord. With our arms stretched wide, Lord God. We wait for you move. We wait for your move, God, Lord. Yes, Father, our heart is expecting something new today, God. Shaka ba 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 ra ba shu ru 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 ru. A good Father, Lord God. We give you glory, God, Lord. Because only you deserve, Lord, hallelujah. You are worthy of our praises, God, Lord. You are worthy, Lord. Shaka ba 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 ra ba shu ru 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 ba she de 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 ya ra. Oh ra 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 ba 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 shu ru 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 ru.
Father, you love us, God. We worship you, God. We cry, holy, holy God. Holy, holy God. And all the angels bow. Redeem, worship you now. And holy, holy, holy are you, Lord. And holy, holy, let's sing together. You, Lord. And holy, holy, holy are you, Lord. And holy, holy, holy are you, Lord. And holy, holy, holy are you, Lord. And now the angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. And holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy. Yes, we cry, Abba. You are the only hope we have, brother. We have seen your goodness over our life, Lord Jesus. That's why we give you worship, God. Once again, Lord God, we give you the heart of worship, Lord God. Surrendering everything, God, Lord. All the thought, Lord. All the circumstances, Lord God. All our weakness, Lord God. We just put in your altar, Lord God. Consume it again, God, Lord. Hallelujah. Yes, Father. We sit with the expected heart, Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. We love you, God, Lord. And we love your presence, God. More and more, God, Lord. O shaka baba raba shotorororo. O raba baba shikiri diriya gara raba shotorororo. Thank you for your presence in this place, God, Lord. Hallelujah. Thank you, God, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Are you excited? कितना लोग excited है? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So आज 3 सेशन होने वाला है ना, तो ये पहला सेशन है और सेकंड सेशन और भी धमाल होने वाला है. Praise the Lord. So तो आप लोग get ready. Praise the Lord. And expect something new from the Lord. Amen. Praise the Lord. So आज हमारा बीच में वो मिला दो तो कोई पास्टर का उसको और हमारा बीच में हमारा पास्टर केनी और उनका बेटर हाफ भी आ चुका है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक बार जोरदार ताली बजाइए. और पास्टर केनी को देने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ उनका बेटर हाफ, एक ब्यूटीफुल लेडी जो परमेश्वर ने पास्टर केनी के जीवन में लाया है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो वी वांट टू ऑनर हर. आमेन. ओ बोल लेके आओ. सो वी वांट टू वेलकम मैडम एंड Pastor Martha, a beautiful lady, a better half of a handsome pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Madam, we want to give you something, and we want to honor you. एक बार we want to welcome you. Praise the Lord. Hallelujah. With this bit. Thank you. अभी हम लोग समय को नहीं गवाते हुए ना, तो आने वाला आते रहेगा ना. सो हम लोग नहीं गवा, जो नहीं आया, जो देरी से आ रहा है क्या कर सकता है, वो लोग मिस कर देगा बहुत ना. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है, तो उन लोगों को आधा से खाने दो ना. है क्या नहीं है? हड्डी चबाने दो उन लोगों को. हम लोग मीट खा लेगा पतापत ना.
चलिए ओस्कार, आई वांट टू वेलकम पास्टर केनी, प्लीज कम. Thank you, Pastor. I will on. Yeah. मैं Oh, on कर देता हूँ. okay. I think it's on. No. अभी on है. Hey, man, I'm so blessed to be back here. और मैं बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ यहाँ पे आकर फिर से. I believe we're going to have a good time. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोगों का कुछ एक अच्छा समय बीतेगा. Amen. Amen. God is in this place. और परमेश्वर इस जगह पे है. Amen. Bible says, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पे 2-3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं वहाँ पे मैं हूँ. Amen. Now, if there is one thing we never look for, we never look for crowd. और हम लोग एक चीज है जो हम लोग नहीं देखते हैं वो है क्राउड. We look for people who are hungry for God. और हम लोग क्या देखते हैं, जो परमेश्वर के लिए भूखा है उसको चीजों को देखते हैं. Amen. Hallelujah. God does not always follow crowds, और परमेश्वर हमेशा क्राउड को फॉलो नहीं करता है. but God will always follow hungry people. लेकिन Amen. परमेश्वर जो है वो भूखा प्यासा लोगों के पीछे में. Hallelujah. Now think about this. You could have been in the best 5-star hotel right now, और आप विश्वास मैंने आप ऐसा अनुमान कीजिए कि आप एक 5 स्टार होटल में हैं you could have been in the best hospital, और या तो फिर बहुत अच्छा हॉस्पिटल में, you could be in the best 5-star prison. और या तो 5 स्टार वाला प्रिजन में ना जहाँ जेल है. But think about it. You are here right now. लेकिन आप सोचिए कि आप यहाँ पे हो You are here to to feed yourself with God's word. और आप यहाँ पे है परमेश्वर का वचन से खुद को भरने के लिए. You are here because you know that, hey, this is the place where I need to be today. और आपको ये मालूम है कि हमको यहाँ होना है क्योंकि परमेश्वर का वचन से खुद को वो करने के लिए. Amen. And that's why you are here. और इसलिए आप यहाँ पे हो. Amen. And now, like I said earlier, और जैसे मैंने पहले कहा था, hunger, God will always follow hungry people. परमेश्वर हमेशा किसी को पीछा करता है जो वो भूखा है प्यासा व्यक्ति को. Amen. Amen. Now, quickly turn with me to the book of Matthew. और आप मत्ती का किताब पे जाइए. Amen. Amen. We're going to start from here. और हम लोग शुरू करते हैं. Hallelujah. Amen. Sorry, Pastor Peter, we don't have a table for you. No, it's okay. Yeah? Fine. All right, okay. Matthew chapter 5. और मैथ्यू का चैप्टर 5 में जाइए. Amen. Amen. Now let's look over here from verse 6. और 6 से हम लोग देखेंगे. Bible says over here, blessed are those who hunger and thirst after righteousness. और परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का धार्मिकता के लिए प्यासे और भूखा है. Amen. Amen. Now when we look at, now think about it. The Christians, let's talk about Christians. और मसीह के बारे में हम लोग बातें करेंगे, मसीह जन के बारे में जो क्रिश्चियन आदमी. We are called to live like kings. और हम लोगों को बुलाया गया है राजा जैसा रहने के लिए. We are to reign like kings, as the Bible teaches us और हम in the लोग- book of Romans. और रोमियो का किताब में लिखा हुआ है कि हम लोगों को परमेश्वर ने राजा की तरह राज करने के लिए बुलाया है. Go to the book of Romans, और रोमियो का किताब पे जाइए. chapter 5. We won't just quote it, but we'll read it together. और हम लोग सिर्फ इसको कोट नहीं करेंगे लेकिन हम लोग पढ़ेंगे. चैप्टर 5 में जाइए. Romans chapter 5, verse 17 says, और 17 में लिखा हुआ है, for by one man's offense, death reigned through the one. Much more those who have received the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. या यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का गलती या पाप के कारण से मृत्यु है वो पूरा क्या कर रहा है, राज कर रहा है सभी के ऊपर में. लेकिन परमेश्वर का जो है अनुग्रह, बहुताई का अनुग्रह और जो उसका धार्मिकता का जो गिफ्ट है, मतलब वरदान है, उसके द्वारा परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हम लोगों को राज करने के लिए इस जीवन में बुलाया है. Amen. Bible says that we will reign in life. और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि जीवन में राज करने के लिए. Now, if you're reigning in life, अगर आप परमेश्वर जीवन में राज कर रहे हैं, that means in every area of your life you are being victorious. और इसका मतलब है कि आप आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप विजयी हैं. Now, when we talk about Christians, और जब हम विश्वासी के बारे में बात करते हैं, see, when God said you're going to reign in life, He didn't just say you're going to reign in your health, but then you're not going to reign in your finances. और जब परमेश्वर ने कहा कि तुम जीवन में राज करोगे तो ये नहीं बोल रहा है कि तुम
हेल्थ मतलब तेरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन तुम पैसा में तो या रुपया पैसा में तुमको वो तुम उसमें राज नहीं करेगा, ऐसा नहीं बोला है। But when he talks about reigning in life, he's talking about every area of your life. और जब परमेश्वर ने जब बोला कि तुम ये जीवन में राज करेगा, तो उसने वो हर एक क्षेत्र जो आपके जीवन से जुड़ा है, वो हर एक क्षेत्र में राज करने का बात कर रहा है। But when we look at Christians today, लेकिन अगर हम लोग आज विश्वासी को देखेंगे, even though they may be winning in their health, और आप देखेगा कि कोई बिलीवर्स को आप देखेगा जो बने तंदुरुस्त तो है, but then financially they are struggling. लेकिन पैसा दौलत में वो लोग सफर कर रहा है। Maybe some are doing well in their money, but then they are struggling in their health. लेकिन कोई फिर क्या है कि पैसा रुपया में ठीक है, लेकिन आप शरीर में फिर तंदुरुस्त नहीं है। But the Bible says लेकिन परमेश्वर का वचन कहता that है we will reign in life. और कि लोग जो है विश्वासी है वो क्या करेंगे, जीवन में राज करेंगे। Amen. So reigning in life means you are having dominion in every area of your life. इसका मतलब मैंने राज करने का मतलब है कि आप अपने जीवन का हर एक क्षेत्र में प्रभुत्ता रखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. But how does that come? और लेकिन वो कैसे आएगा? That comes as a result of you hungering and thirsting after God. लेकिन ये कैसे आएगा? ये तब होगा जब आप परमेश्वर का धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के लिए जब आप भूखा और प्यासे होंगे। Amen. Now the Bible says again in the book of Matthew chapter 5, लेकिन परमेश्वर का वचन मैथ्यू में फिर से कहता है, it says, "Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, और धन्य है वो व्यक्ति जो धार्मिकता के लिए प्यासे और भूखे हैं, for they shall be filled." और वो लोग भरा जाएगा। Amen. Amen. When we hunger and thirst after God, जब हम लोग परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होंगे, God will fill us in every area of our lives. तो परमेश्वर हम लोगों को हर एक जीवन का क्षेत्र में भरना शुरू Whether करेगा। it's in your finances, चाहे वो पैसा में हो, whether it's in your health, चाहे वो आपका ये तो क्या बता है हेल्थ में हो, whether it's in your mental well-being, या तो फिर आपके मन में हो, whether it's in your work, या तो फिर आपके काम में हो, God will cause you to reign and rule in every area of your और life. परमेश्वर आपको क्या करेगा, ये जीवन में आपको राज और प्रभुता रखने देगा। But why are many Christians living in defeat? लेकिन क्यों लेकिन बहुत सा विश्वासी है वो हार के जी रहा है, हरा हुआ जिंदगी जी रहा है। It's because they have not completely understood, and it's because they are not completely hungering after God. और क्योंकि उन लोगों को समझ बुद्धि कम होने का कारण से, और उन लोग परमेश्वर का प्रति भूख और प्यास नहीं होने का कारण See, से, everything that God needs to do for us, He has already done it. और जो कुछ भी आपको चाहिए वो परमेश्वर ने ऑलरेडी वो पहले से ही कर चुका है। Now, there are two things God will never do. और दो चीजें जो परमेश्वर कभी नहीं करेगा। Number one, सबसे पहला, God will never do what He has already done for you. और वो चीज जो परमेश्वर ने पहले ही कर चुका है। Amen. Amen. Jesus is not going to go back to the cross again. और यीशु फिर से वापस वो क्रॉस में जाने वाला नहीं है। Amen. But Amen. people crucify Him every day. लेकिन क्या लोग जो है यीशु को बार बार क्रूसीफाई कर रहा है। But Jesus will never be crucified again. लेकिन यीशु फिर से वो क्या बोलता है, क्रूस पे नहीं लटकेगा। Amen. So the first thing God will never do is that He will never do what He has already done. और सबसे पहला चीज जो वो परमेश्वर जो नहीं करेगा, वो चीज जो है वो जो चीज वो ऑलरेडी कर चुका है। Secondly, और दूसरा, God will never do what He has asked you to do. और दूसरा चीज वो है वो नहीं करेगा जिस चीज को आपको करने के लिए बोला है। Amen. Amen. And so those are the two things God will never do. और ये दो चीजें जो परमेश्वर कभी नहीं करेगा, What He has done for you जो वो कर चुका है and what He asked you to do. और जो चीज आपको करने के लिए Now, बोला the है। reason why people are living in defeat क्यों का या क्या बता, लोग क्यों हरा हुआ जिंदगी जी रहा है, is because they want to put Jesus back on the cross. और क्योंकि वो लोग क्या करता है, यीशु को बार बार क्रूस पे लटकाना They चाहता want है, God to do it for them. और वो लोग चाहता है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए When करे। God already says, "Son, it is finished." और जो कि परमेश्वर पहले से ही बोल चुका है कि बेटा ये पहले खत्म हो चुका है, सब कुछ हो चुका Come है। on, Jesus went to the cross and He said 3 words: "It is finished." और यीशु क्रूस पे लटका और उसने कहा कि ये खत्म हो चुका है। Amen. Amen. Our breakthrough lies in our believing in what Jesus has already done for us. और जो हमारा ब्रेक थ्रू का जीवन जो है वो क्या उस प्रकाश में है जो यीशु ने हमारा लिए क्रूस पे जो किया है। Believe in the finished work of Jesus Christ on the cross और आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु ने सब कुछ कर चुका है, and do what He has asked you to do. और कीजिए उन चीजों को जो
परमेश्वर ने आपको करने के लिए When बोला you है, do those two things, और जब आप ये दो चीज को करेंगे, you will find victory in every area of your life. और तो आप हर क्षेत्र में आपकी विजय को प्राप्त करेंगे. Who does not want a breakthrough? और किसको ब्रेक थ्रू नहीं चाहिए? Amen. Everybody wants a breakthrough. हर किसी को ब्रेक थ्रू चाहिए. But why is not everybody experiencing breakthroughs in their lives? लेकिन हर कोई ब्रेक थ्रू को एक अनुभव नहीं करने It's वाला है. because they're not pressing in. क्योंकि उन लोग वो ये चीज पे आगे नहीं बढ़ रहा है. Amen. Amen. They're not pushing themselves. और वो लोग अपना आप को पुश नहीं कर रहे हैं. Now, see, the thing is, it's not going to come easily. और कोई भी चीज जो है वो आसान से नहीं आता है. Amen. Amen. Everything has to be fought for. और हर एक चीज के लिए लड़ाई करना पड़ता है. Paul told Timothy, और पौलुस ने तिमोथी को कहा, fight the good fight of faith. और लड़ो अच्छा विश्वास वाला लड़ाई. Amen. Hallelujah. Amen. Now think about it. When Paul tells Timothy to fight the good fight of faith, और पौलुस सोचिए कि पौलुस ने तिमोथी को बोला कि लड़ाई एक विश्वास का अच्छा लड़ाई लड़ो बोल it के. is a struggle he's talking about. और वो क्या एक संघर्ष के बारे में बात कर रहा है. Right? He's talking about to keep the faith, to keep your faith, you have to put up a fight. और इसका मतलब है कि आपका विश्वास को पकड़ के रखने का बातें कर रहा है. Because the enemy is going to do everything to kill your faith. और क्योंकि आपका दुश्मन जो है आपका विश्वास को मारने के लिए वो सब कुछ करेगा. Because the moment you learn how to live by faith, और जब आप सीखेगा कि विश्वास से कैसे जीना है, you're going to start experiencing breakthroughs. और तो आप क्या करेगा, ब्रेक थ्रू को अनुभव करने शुरू हो जाएगा. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you a quick story. और मुझे बोलने दीजिए एक छोटा सा कहानी. Many years ago, there was a marathon that that happened in the country of Australia. और ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे एक मैराथन रेस हुआ था. It's an ultra marathon, और ये जो अल्ट्रा मैराथन है था, 875 kilometers marathon. सोचिए तो 875 Yeah. किलोमीटर वाला मैराथन माने I mean, बहुत ही लंबा. that's a lot. बहुत ज्यादा है. I mean, like Dimapur to here would be what, around 250 kilometers? Yeah, something like that. Maybe around 250. So we are talking about going to Nagaland, coming over here, and going back again. हाँ. इसका मतलब यहाँ से तो दिमापुर आना जाना हो जाएगा. Right? It takes think about it. It takes 5-6 hours to get over here. और हम लोगों को यहाँ में 6 घंटा लगा है, 7 घंटा. And these guys are going to run a marathon that's going to cover at least 875 kilometers. सोचिए 875 किलोमीटर को उन लोगों को कवर करना था, वो भी मैराथन. Now this was back in the year 1983. और ये 1983 का बात है. जब So when the marathon was announced, और मैराथन को अनाउंस किया गया, many great runners came from all over the world. और बहुत सारा दुनिया का पूरा छोर से सब माने जो दौड़ने सकने वाला लोग आया. And among all these runners, there was one man from Australia, one old man, 61-year-old. और सोचिए वो इतना माने एक्सपर्ट वाला दौड़ने वाला में से सिर्फ यहाँ ऑस्ट्रेलिया से एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका उम्र था 81. 61. और सॉरी 61. He was a potato farmer. और वो जो क्या था, वो आलू का बगान करने वाला खेत. So he also registered for the race. और उसने भी अपना नाम को रजिस्टर. When everybody registered, this guy came and said, I also want to run this marathon. और उसने भी बोला कि मैं भी दौड़ना चाहूंगा बोल के. And so on the day of the marathon, और जिस दिन मैराथन का जो दिन था, when all the professional runners came with their best clothing, और जितना भी प्रोफेशनल वो जो दौड़ने वाला लोग था, वो लोग सब अपना बेस्ट कपड़ा लगा के आए. their best running shoes, और उसका बेस्ट मतलब एकदम अच्छा वाला दौड़ने वाला जूता लगा के आया. here comes this 61-year-old man. और यहाँ पे एक 61 उम्र का व्यक्ति आता His है. name was Cliff Young. और उसका नाम जो कैलिफोर्नियन था, So Cliff Young. क्लिफ यंग. Yeah. So he comes to the race और वो दौड़ में आया. dressed in overalls. और Like like the farmers wear, right? They wear yeah. They wear overalls all the way from up here. They have like डंगरे बोलता है. yeah, dangre. Yeah. So he came dressed in one of those, या. and he was wearing a boot. और वो बूट लगा के आया, सोचो. Right? So think about it. He's coming wearing his dangri, and he's like wearing boots to run an 875 kilometer race. सोचिए 875 किलोमीटर रेस को वो दौड़ने के लिए क्या लगा गया, डंगरी और क्या होता है, बेबी जींस भी बोलते हैं ना जो और जूता, वो ऐसा वाला पहन के बूट पहन के आया. And the man had a physical problem. और वो आदमी का शारीरिक रूप से भी थोड़ा तकलीफ था. Everybody was running smart.
और सब हर कोई पूरा एकदम अच्छा से दौड़ रहा था But Cliff Young would run like this. और वो क्लिफ हैंग जो है ऐसा दौड़ रहा था क्योंकि उसका बदन शरीर में प्रॉब्लम His hands would not move. He would run like that. और उसका हाथ जो ऐसे से मूव नहीं होता है वो जो ऐसे करके दौड़ता था And so the race began. और जब दौड़ शुरू हुआ Everybody took off. और हर कोई उसको पार कर दिया Everybody thought Cliff Young is not going to win. और ये क्लिफ यंग जो हर कोई सोचा है कि ये क्लिफ यंग तो नहीं जीतेगा Everybody thought this guy is not going to make it to the end of the race. Forget it. He's not even going to make it for a day. और वो बोल रहा कि एक दिन भी नहीं सकेगा ये तो छोड़ दो दूर का बात है वो जितना तो So every professional runner had a plan. और लेकिन हर एक प्रोफेशनल जो दौड़ने वाला का पास में क्या था स्ट्रेटेजी था या फिर प्लान था They all decided that they're going to run 18 hours every day. और उन लोगों ने डिसाइड किया कि 18 घंटा दिन में दौड़ेगा Out of 24 hours. 24 आवर्स में 18 आवर्स दौड़ेगा And then they're going to rest for 6 hours. और फिर से 6 आवर लोग रेस करेगा 6 And then, घंटा and then again, they're going to start their race the next day. और फिर से वो लोग फिर दौड़ेगा सोच रहा था So everybody ran ahead. और उसको हर कोई उससे उसको पार करके And आगे here was बढ़ा। Cliff Young running his own race और वो जो क्लिफ यंग जो अपना ही दौड़ को दौड़ रहा था behind everybody. और सबसे पीछे So when everybody ran for 18 hours and were resting, और 18 घंटा सब कोई 18 घंटा दौड़ के रेस कर रहा था Cliff Young kept running. और लेकिन क्लिफ यंग जो दौड़ ही रहा है By the time everybody was asleep, और जब हर कोई सो रहा था he was still running his race. और वो फिर भी दौड़ ही रहा था Now, the race, altogether, the race was run for 5 days and 15 hours. और 5 दिन और 15 घंटा दौड़ा है So in 5 hours and 5 days and 15 hours, Cliff Young finished his race. देखिए 5 दिन और 15 घंटा में उसने अपना दौड़ को पूरा किया When everybody was asleep, he was running. और हर जब कोई जब सो रहा था वो दौड़ ही रहा था Now here's the thing about Cliff Young. और ये क्लिफ यंग के बारे में ये बात है He had no plan. उसका पास में कोई प्लान ही He नहीं था just kept running. और उसको वो सिर्फ दौड़ ही रहा He था was not the fastest, वो सबसे तेज दौड़ने वाला तो नहीं था but he kept running. लेकिन वो दौड़ ही रहा And he was able to complete his race in 5 days and 10 hours. और उसने क्या किया वो 5 दिन और 10 घंटा में उसने अपना दौड़ को पूरा किया He came first in the race. और वो रेस में सबसे पहला आया The closest person to finish after him was 10 hours behind him. और जो उसका सबसे नजदीक जो उसका बाद में जो पहुंचने वाला जो कितना था पता है 10 घंटा का फर्क था बोला So the thing is, this guy kept running. क्योंकि ये व्यक्ति जो है दौड़ ही He रहा kept था pushing himself. और वो अपना आप को पुश ही कर He रहा था kept pressing in. और वो अपना को ठेल ही रहा था And as a result of what he did, he was able to come to the finish line before anyone. और उसने क्या किया वो सबको पार कर दिया ना See, Christian life is not a 100-meter race. और क्रिश्चियन लाइफ जो है वो जो 100 मीटर रेस नहीं है Are you listening to me? क्या As a Christian, we are not to run 100-meter races, but we are to run marathons. और हम लोगों को ये जो 100 मीटर वाला रेस हम लोग नहीं दौड़ रहा है लेकिन हम लोग एक मैराथन वाला रेस को दौड़ रहे We have to run. We have to learn how to pace ourselves. हैं और हम लोगों को दौड़ना है अपना पेश को वो बना के Speed up when you need to speed up. और हम लोगों को अपना ही उसमें दौड़ना है Slow down when you need to slow down. जब हम लोगों को तेज दौड़ना है जब हम लोगों को स्लो दौड़ना है मतलब धीमी को कम करना है तब धीमी कम करना है Now, when we talk about 100-meter races, जब हम लोग 100 मीटर रेस के बारे में बात करते हैं they give all their energy and all that burst of energy in that 100 meters. और जब 100 मीटर रेस में क्या होता है कि उनका जितना भी शक्ति सामर्थ है सब कुछ लगा दे निचोवर कर देता है The world's fastest runners are able to complete a 100-meter in 9 seconds. और जो सबसे फास्टेस्ट जो है वो 9 सेकंड में वो 100 मीटर को वो उसने वो तय किया था But after that 100 meters, और लेकिन वो 100 मीटर का बाद they have lost all their energy. और उन लोगों का क्या एनर्जी पूरा खत्म I mean, like, they cannot even take another step after that. और उसका बाद में तो वो लोग दूसरा कदम भी नहीं लगा सकते Because they have this burst of energy which they have to put in to finish this race. और क्योंकि उन लोगों ने जितना भी अंदर में जो उन लोगों का ताकत सामर्थ था वो 100 मीटर को पहुंचने के लिए उन लोगों ने लगा See, दिया many Christians, we put a lot of burst in our works, but then we don't plan to continue. देखिए हम लोग अभी बहुत से समय में विश्वासी हम लोग क्या होता है कि पूरा ताकत लगा देता है ना लेकिन हम लोग वो आगे का हमारा पास में वो नहीं होता है प्लान नहीं होता है And as a योजनाएं नहीं होता है as a result of that, the consistency is not there. और क्या है वो नियंत्रण करने का हम लोगों के पास में वो नहीं We रहता है give up quickly. और हम लोग इसलिए हम लोग क्या करते हैं गिव अप कर लेते And हैं every time we give up, the enemy is like happy.
और जब भी हम लोग गिव अप करता है तो आपका दुश्मन जो है वो बहुत खुशी होता है। The goal is that we keep pressing in. और हमारा जो गोल जो है मतलब क्या है, मकसद जो होना चाहिए कि हम लोग अपना आप को पुश करते रहना है। Now, if ना there कि is- मैंने वो करते रहना If there is one thing God did not promise us, है। और एक चीज जो है जो परमेश्वर ने हम लोगों को वादा नहीं किया, God did not promise us that after we give our lives to Him, our life is going to be, be a life that is filled with no problems. हाँ, देखिए एक वादा जो परमेश्वर ने कभी नहीं किया कि वो है कि आप उसको जब जीवन दे देगा तो आपका जीवन जो है बहुत ही अपना आप में ही मने सब कुछ अच्छा हो जाएगा। No, God did not say that. और परमेश्वर ने कभी ये वादा नहीं किया। Jesus Himself said they're going to persecute you. और यीशु ने इनफैक्ट यीशु ने क्या कहा है कि उसने कहा कि तुमको सतावत होगा। In John chapter 16, और जो यूहन्ना का 16 में जाइए, let's look over here. John chapter 16, जॉन का 16 में जाइए verse 33. और 33 को देखेंगे हम लोग। Oh my goodness, many Christians think, many people think, wow, now that I've given my life to Jesus, everything is going to be perfectly fine. और बहुत लोग क्या होता है कि बहुत लोग अब यीशु को जीवन देने के बाद में वो लोग सोचता है कि अभी हमको कोई भी समस्या नहीं होगा, मेरा जिंदगी बस क्या Yes, होगा। yes, it is there. लेकिन हाँ ऐसा है, But there is a process to obtain that. लेकिन वो प्राप्त करने के लिए आपको प्रोसेस से जाना पड़ेगा। Amen. Amen. John chapter 16. और यूहन्ना का 16 Look at verse 33. और 33 में देखेंगे हम लोग। Jesus says over here, these things I've spoken to you that in me you may have peace. In this world you will have tribulation, but be of good cheer, I've overcome the world. Amen. और ये चीज मैंने तुमको इसलिए कहा कि तुम मुझ में शांति पाओगे, लेकिन ये दुनिया में तुमको क्या होगा, कैलाश होगा। और लेकिन तुम क्या होता है, खुशी मनाओ क्योंकि मैंने इस दुनिया को ओवरकम किया है। Amen. Jesus Himself said, in this world you will face tribulation. In this world you will face trouble, but don't worry about it. I've overcome them. लेकिन यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा कि इस दुनिया में तुमको समस्या, तुमको कैलाश होगा, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि मैंने इस दुनिया को जीत चुका है बोला। Amen. How do you overcome? और आप कैसे ओवरकम करेंगे? You कैसे overcome by consistently walking with Jesus. और आप कैसे करके आप ओवरकम करेंगे या फिर आप जीत पाएंगे? जब आप यीशु के साथ में निरंतर बना रहे के आप चलेंगे। Amen. Amen. Turn with me to the book of Corinthians, 2 Corinthians. 2 कोरिन्थी का दूसरा कोरिन्थी का Chapter 4. चैप्टर 4 में जाइए 2 Corinthians chapter 4. Look at verse 8. और 8 में देखिए। Paul says over here, और पौलुस ने इस यहाँ पे कहा, we are hard pressed on every side, yet not crushed. और यहाँ पे देखा है ना, वो बोला कि हम लोग हर चारों तरफ से हम लोग क्या हुआ है, पिछला गया, लेकिन भी फिर भी हम लोग नहीं वो हुआ है, क्रश Think नहीं हुआ, about it. पिछला गया। I mean, like Paul himself, हाँ, the great apostle Paul, who wrote more than half of the New Testament. देखो जो ये पौलुस वो व्यक्ति है जो जिसने न्यू टेस्टामेंट का सबसे ज्यादा भाग लिखा है। The man who had all the revelations about, being in Christ, all the revelations about walking in victory. और देखिए ये वो व्यक्ति है जिसका पास में क्या बोलता है, मसीह में हम कौन है, उसका जो पूरा प्रकाश और या फिर हम लोग विक्ट्री में, विजय में कैसा चलना है, उसका प्रकाश उसका पास में बहुत ताई से था। Says that we are hard pressed on all sides. और उसने क्या कहा कि हर जगह से हम लोग को क्या बोलता है वो हुआ है, कुचला गया। Right? I mean, in this world, you will be pressed. और इस दुनिया में आपको पूरा वो होगा, In this कुचला world, जाएगा। they will try to crush you. और आपको पूरा कुचलने का कोशिश करेगा। But see, here's one thing the enemy does not understand. और एक बात है जो आपका दुश्मन नहीं मालूम है, When we are crushed, जब हम लोगों को कुचला जाएगा it brings the best out of us. और हमारा अंदर से सबसे बेस्ट चीज जो निकलेगा। Amen. Amen. Some of the greatest victories you'll ever have in your life is when the enemy comes and attacks you. और आपका जो ग्रेटेस्ट विक्ट्री माने विजय जो है और या ब्रेक थ्रू है वो तब होता है जब आपका दुश्मन जो है वो आपको जब हमला करता है। When the early church was pressed और जब जो पहला and कलीसिया persecuted, था, yeah. जब पहला कलीसिया जो उसको जब उन लोगों का क्या बोलता है सतावत हुआ था या फिर प्रॉब्लम आया था, it brought the best out of them. और उन लोगों का अंदर से जो है जो परमेश्वर ने जो रखा सबसे अच्छा चीज जो निकल के The आया। more they were crushed, the more they were pressed. और जितना उन लोगों को कुचला गया, जितना उन लोगों को वो किया है,
the more the church multiplied. और उतना ही चर्च जो है वो क्या हुआ है, बढ़ने शुरू हो गया. Amen. Amen. When the devil will try to crush the church, और जब भी शैतान जो चर्च को क्या कुचलना चाहता है, the church will always multiply. और वो जितना बार भी शैतान उस चर्च को कुचलना चाहता है उतना ही चर्च बढ़ने शुरू हो जाता है. We'll come back over here to the book of 2 Corinthians. 2 कोरिन्थियन में हम लोग बाद में आएंगे. Go to the book of Acts. और एक सप्ताह प्रेरित किताब में I निकालिए. want to show you something over here. और मैं आप लोगों को यहाँ से कुछ दिखाना चाहता हूँ. Amen. Amen. Hallelujah. Because I'm telling you, God will always, God will always cause growth to happen when we are pressed. जब परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जब भी प्रेस हो तो हम लोग वहाँ पे बढ़े. Amen. Amen. Now, let me see over here. Let me find the portion of scripture because this just came into my heart. Amen. और मैं आप लोगों को वो क्या होता है वचन दिखाना चाहता हूँ, मेरे हृदय में आया. In Acts chapter 4, और प्रेरित का 4 में देखिए. let's just look over here. और यहाँ पे देखिए. Oops. Is my table going lower and lower and lower? Sorry. Okay. Now, look over here. The church was being constantly persecuted. और यहाँ पे कलीसिया को वो मतलब पूरा सतावत हो रहा था. Right? Lots of persecutions were happening in the church. और बहुत सारा सतावत हो रहा था कलीसिया. Peter and John went to preach, went and ministered to, a person who was deaf and dumb. और पीटर और जॉन जो है, पतरस और यूहन्ना जो है, वो जो काना था, गूंगा था, ऐसा व्यक्ति को जब वो कर रहा था. And they were persecuted in verse 13, chapter 4. और 13 में देखिए, 4 का 13 में देखिए. Right? Because they saw that these people were uneducated, untrained. और जब लोगों ने देखा कि पतरस और यूहन्ना जो है वो लोग क्या बोलता है कि वो लोग एकदम क्या बोलेगा अनट्रेन, मतलब ना जिसको ट्रेनिंग भी नहीं है. They threatened them to not preach the gospel. और उन लोगों को क्या धमकी दिया कि प्रचार मत करो बोल के. Now in verse 23, 23 में जाइए. the Bible says when they were let go, they went back to their company. और जब उन लोग अपना झुंड के पास में फिर से चला गया तब. Right? And the Bible says they lifted up their voices and they prayed to God. और उन लोगों ने अपना आवाज को उठाया और परमेश्वर को प्रार्थना किया. Now look at verse 31. और 31 को हम लोग देखेंगे. When they prayed, the Bible says the place where they were assembled was shaken. और जब उन लोगों ने प्रार्थना किया वो जगह जहाँ पे उन लोग गैदरिंग हुआ था वो हिल गया बोला है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And in verse 33, And 33 में देखिए. Bible says with great power the people, the apostles gave witness about the resurrection of Jesus Christ. और बड़ा ही सामर्थ के साथ में जो प्रेरित लोग ने क्या किया, यीशु का जो उठने वाला ना जो रिजरेक्शन का बारे में उन लोगों ने Hallelujah. Hallelujah. With great power they gave the witness of Jesus Christ. और उन लोगों ने बड़ा ही सामर्थ से यीशु का गवाही दिया. Hallelujah. So the church did not become quiet when they were being pressed. और ये कलीसिया जो है ये लोग चुपचाप नहीं बैठा है जब उन लोगों को कुचला गया. But the more they were pressed, जितना उन लोगों को प्रेस किया, the more bolder they became. और उन लोग उतना ही हिवाव से उन लोग क्या किया, प्रचार किया. And if you keep reading the scriptures, और जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते जाएंगे, Bible says that the Lord added to the church. और परमेश्वर ने लिखा कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने लोगों को क्या किया, जुराया. So when we are pressed, जब हम लोग को प्रेस किया जाता it है brings the best out of us. और हम लोगों के अंदर से बहुत ही बेस्ट वाला चीज निकल के आता है. Now when we talk about oil, sunflower oil, जब हम लोग तेल के बारे में बात करते हैं, we talk about olive oil, sunflower oil, ऑयल देखिए, सनफ्लावर ऑयल और ओलिव ऑयल के होता है. all the oils that we use for our cooking, और जितना भी mustard तेल- oil. और जितना भी ऑयल और जितना भी तेल है हम लोग क्या पकाने के लिए हम लोग यूज किया जाता Now है. the process of extracting that oil happens as a result of the pressing. Yeah. और लेकिन जो वो तेल जो निकलता है, वो जो तेल का निकलने का जो प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया जो कैसे होता है, उसको कैसे अलग किया जाए, कुचल जब वो पीसा जाता है, So unless you press it, और जब तक आप उसको कुचलेगा नहीं that oil does not come out. तब तेल ने बाहर नहीं आएगा. But when the pressing happens, और जब स्वर का जब वो कुचलेगा, it brings the best out of that seed. और वो
क्या बोलते हैं बीज से है वो क्या होगा बेस्ट चीज जो निकलेगा And, उत्तम चीज and it is the same for us as well. और हमारा साथ में भी वैसा ही होता है When we are pressed, जब हम लोगों को पिसला जाता है या कुचला जाता है it brings the best out of us. और हमारा अंदर से उत्तम चीज निकल के आता है So rather than keeping silent when you are going through problems, जब आप क्या बोलता है जब समस्या से आप लोग गुजर रहे हैं तब आप वहां पे चुपचाप मत बैठिए understand and know that when the enemy is trying to press you, और आप समझे कि जब आपका दुश्मन आपको कुचलेगा it'll bring the best out of you. और आपका अंदर से उत्तम चीज निकल के आएगा Hallelujah. Hallelujah. So coming back to the book of 2 Corinthians chapter 4, और हम लोग फिर से वहां पे जाएंगे जहां पे हम लोग शुरू किया था 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 में जाइए Paul says we are hard pressed on every और side. पौलुस ने कहा कि हम लोगों को हर जगह से हम लोग को सतावत हुआ या फिर प्रेशर आया But we cannot be crushed. लेकिन हम लोग मतलब वो नहीं हुआ है Amen. We are persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. हम लोगों को क्या हुआ है सतावट हुआ लेकिन हम लोग हार नहीं माना है ना Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the goal is to keep pressing ourselves in. और हमारा मकसद जो क्या है कि हम लोग अपना आप को क्या बोलते हैं आगे बढ़ाते रहना Into the things of God. और परमेश्वर का चीजों में Hallelujah. Hallelujah. Never accept defeat. और आप हार को एक्सेप्ट मत कीजिए Amen. Because the Bible says you are more than a conqueror. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जयवन से बढ़कर है He has already given you the victory. और उसने आपको पहले से ही विजय दे चुका है Amen. You are not losing a battle. और आप जो है कि आपका लड़ाई को आप नहीं हार रहे You are already counted a winner. और आपको परमेश्वर ने ऑलरेडी क्या बोला ये विजय क्या विनर को क्या बोलते हैं हम लोग जीतने वाला But in your walk as a Christian, और आपका जो वाक है एज ए बिलीवर you will go through the pressing. लेकिन आपको ऐसा कुचलने वाला सीजन से आप But जाएंगे। every time you go through that pressing, और लेकिन जब भी आप वो कुचलने वाला सीजन से आप जाएंगे remember that God is bringing the best out of you. लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर आपके अंदर से उत्तम चीज को वो निकाल रहा है Amen. Remember that you are going to come out even better than before. और याद रखिएगा कि आप जो पहले से भी ज्यादा उत्तम होके और आप निखरेगा Hallelujah. हालेलुया Press in, press in, press अपना आपको in. वो करते रहिए आगे बढ़ाते रहिए I want to tell you a story और मैं एक कहानी को बताना चाहता हूँ in the book of Mark, chapter 5. और मार्क में जाइए चैप्टर 5 में This is a good place to begin. और ये बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ से हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं Amen. Hallelujah. शुरुआत के लिए Whatever we are talking about is a good thing. और जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं वो अच्छा चीज है Hallelujah. Hallelujah. Because this will propel you forward. और आपको ये चीज जो आगे बढ़ा के ले जाएगा Amen. Amen. In Mark chapter 5, और मार्क का चैप्टर 5 में here we find the story of a certain woman. और यहाँ पे एक औरत के बारे में कहा गया है Verse 25. 25 में आप जाइए Bible says that a certain woman had a flow of blood for और- 12 years. और 12 साल से ये औरत का क्या लहू बह रहा था Now I want you to understand the position of this lady over here. और आपको मैं आप लोगों को जानने देना चाहता हूँ कि आप लोग ये समझे कि ये औरत का जो पोजीशन है Now when the woman was having a flow of blood for 12 years, देखिए 12 साल से जो लहू बहने का मतलब क्या होता it is unnatural. है और ये नेचुरल नहीं है Now, we all know, we are all grown up over here. You know, women go through a certain cycle every month. They go through a cycle in their body. देखिए हम लोग को मालूम है कि औरत लोगों का लड़के लोग जो है वो जो उन लोगों का महीना में जो होता है वो हम लोगों को मालूम है And when a woman goes through that cycle, और जब वो चीज से उन लोग जब गुजरता है in the Jewish custom, they are considered to be unclean. लेकिन यहूदी का जो कस्टम में उसको क्या बना था ये अपवित्र माने काउंटेड होता था So in that period of time, you know, they were not encouraged to do things that they normally do. और उस समय में उन लोगों को एनकरेज क्या किया जाता था कि औरत लोगों को वो जब वो साइकिल से जाता है तो उस समय में उन लोगों को बोलता है कि कोई काम मत करो जो चीज़ नॉर्मली जो औरत लोग करता है वो चीज़ को मत करो बोला जाता था They're not encouraged to come out of their homes. और इवन उन लोगों का जो कमरा से भी
निकलने के लिए नहीं बोलता था। Now, it's not just among the Jews, but it is very prevalent in many societies in the world. और सिर्फ यहूदी में नहीं, बहुत सारा समाज में भी, अलग अलग दुनिया के छोटे छोटे में भी होता है। But imagine this woman has been suffering for 12 years. लेकिन 12 साल से सोचे ये औरत जो वो चीज से गुजर रहा है, Now, she was considered unclean. और ये औरत को क्या है कि अपवित्र माना जाता था, She was, called somebody who was not fit for the society. और उसको क्या बोला जाता है कि ये समाज के लिए भी फिट नहीं है ना। And so this lady has been suffering for 12 years. लेकिन ये औरत जो है 12 साल से गुजर रहा था। And the Bible says in verse 26 that she suffered many things from many physicians. और परमेश्वर का वचन में 26 में लिखा हुआ है कि वो जो है बहुत सारा तकलीफ से गुजरा, और बहुत सारा जो फिजिशियन जो डॉक्टर्स है माने उस समय का जो उसको मेडिकली जो ट्रीटमेंट करता है उन सब से भी ज़्यादा सफर किया। And this lady also, the Bible also says that she had spent all the money she had, but did not get any better, but became worse. लेकिन उसने पूरा धन संपत्ति उसने पूरा गवा दिया वो ट्रीटमेंट में, लेकिन अच्छा होने का बदली उल्टा उसका हालत जो और खराब हो रहा। Now she was needing a breakthrough in her life. और उसको क्या चाहिए था? ब्रेक थ्रू चाहिए था। She's been suffering for 12 years, imagine. और 12 साल से वो गुजर रहा था। Society says you are cursed. और उसका समाज बोल रहा था कि तुम क्या था, श्रापित है। Society says that you are unclean. और समाज जो बोल रहा था कि तुम अपवित्र है। Society says you cannot live with us और समाज कह रहा था कि तुम हमारे साथ में नहीं रह सकता because you are unclean. क्योंकि तुम जो है अपवित्र है। Imagine what this woman was going through. लेकिन सोचिए कि ये औरत इतना सारा चीज से गुजर रहा था। Abandoned by her own family. अपना ही परिवार उसको त्याग दिया। Right? Not even the family members wanted to be around her. और उसका जो परिवार का सदस्य भी उसके साथ में घुटना नहीं चाहता था। Imagine, like people wanted to go and hang around. Well, she wanted to go and hang around with people, but people said, "Don't come to us." देखिए वो तो चाहता है लोगों के साथ में घुल मिले, लेकिन लोग उसके साथ में घुल मिलना नहीं चाहता था। Not even allowed to step into somebody's home, लेकिन उसको क्या है उसको अधिकार भी नहीं था कि किसी के घर पे वो कदम रखे, or not even allowed to step out of your home. और अपना घर से भी उसको कदम उठाने का उसका हक नहीं था। Imagine what she was going through in her life. आप सोचिए कि वो इतना जीवन में वो क्या क्या चीज से नहीं गुजरा। I bet every day she was thinking like, "Oh man, I wish I can be well." और वो चाहता, मैं सोचता हूँ कि वो सोचता था होगा कि मैं अच्छा हो जाऊँ। I wish I can be normal just like the others. और वो सोचता था होगा कि मैं भी एक नॉर्मल व्यक्ति ना, See, साधारण व्यक्ति की तरह many मैं people want to experience, those kind of breakthroughs in their lives. और बहुत से लोग हैं उसी औरत की तरह वो एक ब्रेक थ्रू चाहता है। Here's how she obtained her breakthrough. और उसने कैसे करके अपना ब्रेक थ्रू को पाया, देखिए Let's keep reading. Verse 27. तो 27 में जाइए। Bible says when she heard about Jesus. और उसने परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने यीशु के बारे में सुना। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It began by hearing about Jesus. और ये जो कहाँ से शुरू हुआ, यीशु को के बारे में सुनने से। Amen. Amen. Her healing process began when she heard about Jesus. और जब उसका हीलिंग जो प्रोसेस जो प्रक्रिया जो कहाँ से शुरू हुआ, जब उसने यीशु के बारे में जब सुना। Amen. When Bible says when she heard about Jesus. और जब यीशु के बारे में उन लोगों ने सुना। How did she hear? और उसने कैसे सुना? Somebody must have told her. और किसी ने तो बोला होगा ना उसको। Amen. Somebody must have said, "Hey, guess what? Jesus heals." और किसी ने बोला होगा, हे सुनो यीशु चंगा करता है। Somebody must have told her, "Jesus can heal your problem." और किसी ने जरूर कहा होगा कि तेरा समस्या को यीशु ही ठीक कर सकता है। Amen. Amen. Everybody needs to hear about Jesus. और हर किसी को यीशु के बारे में सुनना If जरूरी they're है। going to experience breakthrough, they first need to hear about Jesus. और अगर आपको अपना जिंदगी में ब्रेक थ्रू चाहिए तो सबसे पहले आपको यीशु का बारे में सुनना होगा। Amen. Amen. Hallelujah. Not just once, लेकिन सिर्फ एक बार नहीं, but hearing enough to believe. और इतना कि आपका अंदर में विश्वास करने के लिए वो पैदा होता है। विश्वास Amen. पैदा होता है। Romans 10:17 says, "Faith comes by hearing, and hearing by the word of God." रोमियो का 10:17 में कहता है कि विश्वास सुनने से मसीह के वचन से आते हैं। Amen. You Amen. cannot just hear once and believe. और आप एक बार सुन के विश्वास करेगा ऐसा You नहीं gotta होता है। hear it again and again and again and again. और आपको परमेश्वर का वचन
वचन को बार बार सुनना होगा। When she heard about Jesus, और जब उसने यीशु के बारे में सुना, Bible says she came behind him in the crowd. और वो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसने जब यीशु के बारे में सुना, वो यीशु के पीछे पीछे आ गया। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Now think about this woman. और सोचिए इस औरत के बारे में, She heard it और उसने सुना, and she was so convinced. और वो इतना मतलब वो हो गया, क्या होता है, कन्विंस हो गया, She started acting on what she believed. और उसने शुरू किया जो विश्वास उसने किया। Now think about it. Bible says और परमेश्वर का वचन कहता है, that she has spent all her money. उसने परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक रुपया उसने She has खर्च gone करवा to दिया। so many doctors. और वो पूरा डॉक्टर के पास She लेके गया। suffered so much through the hands of the doctors. और इवन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो डॉक्टर का हाथ से भी उसको सफर हुआ है। And the Bible says she became worse than before. और उसका सही होने का जगह में उल्टा वो ट्रीटमेंट जो उसको और ज्यादा वो Now कर दिया। imagine suffering with a flow of blood for 12 years. और 12 साल से लहू बहा रहा था उसका। You must become very weak by the time you know, it's 12 years. और 12 साल से लहू बहने का मतलब है कि उसका वो औरत जो है बहुत ही कमजोर था। It was a major problem she had in her body. और उसका शरीर में बहुत ही बड़ा समस्या था। And it was not just a physical problem, और सिर्फ जो शारीरिक की समस्या नहीं था, but even people told her, we don't want to come and touch you. You are not fit for our society. You are cursed. देखिए सिर्फ ये शारीरिक उसका समस्या नहीं था, ये सामाजिक समस्या भी था, क्योंकि लोग बोल रहा था कि तुम हम लोग का साथ में नहीं रह सकता है, Society did not want her. क्योंकि समाज उसको नहीं चाहता था। But her faith, when she heard about Jesus, लेकिन उसका विश्वास जब उसने यीशु के बारे में सुना, she really wanted her breakthrough. और वो सच में चाहता था कि उसका ब्रेक थ्रू को, So she took all the strength that she had left in her. और उसने पूरा ताकत उसका अंदर में जो बचा था वो ताकत को पूरा लगा दिया। And the Bible says that she came to the crowd. और वो पूरा भीड़ में आ गया बोला। Now, wherever Jesus went, और जहां में भी यीशु गया है, Bible says that multitudes followed him. और परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे लोग जो है उसका पीछे पड़ जाते हैं। Hundreds of people were with Jesus, coming to Jesus. और ये 100 से भी ज्यादा लोग उसके पीछे में, And in the midst of all this crowd, और इतना माने भीड़ के बीच में भी, here is this lady who has been suffering for 12 years, और यहाँ पे एक व्यक्ति औरत जो 12 साल से जो सफर कर रहा था, pressing through the crowd. और पूरा भीड़ को पूरा चीरते हुए, Pressing through. और वो भीड़ को चीरते हुए, Amen. Amen. Pushing away people with all the strength that she had left in और her. उसका जो जितना भी ताकत था वो ताकत से वो भीड़ को हटाते हुए चीरते हुए वो निकला, Because she must have heard that Jesus was able to make her well. और क्योंकि उसने जरूर सुना है कि यीशु उसको चंगा कर सकता है बोल। Hallelujah. हालेलुया। Bible says that she came behind him in the crowd and touched his garment. और परमेश्वर का वचन कहता है उसने भीड़ को चीरते हुए हटाते हुए उसने यीशु का कपड़ा का टुकड़ा को पकड़ा। Amen. Amen. For she, Bible says in verse 28, it says, for she said, if I will touch Jesus' cloth, I will be made well. और वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो औरत बोल रहा था कि अगर यीशु का वस्त्र का मैं टुकड़ा को, कपड़ा का टुकड़ा को भी, वस्त्र का टुकड़ा को भी मैं अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। She believed that if she will touch Jesus, instant healing will come to her और body. वो ये विश्वास कर रहा था अगर हम यीशु को टच भी छुएगा भी तो मैं चंगा हो जाऊंगा, Breakthrough will come into her life. और मेरा ब्रेक थ्रू मेरे जीवन में आ जाएगा। And so with all the strength that is left in her, और जितना भी ताकत उसके अंदर, सामर्थ जो है उसका अंदर में जो बचा था, pressed through the crowd. और वो उसने क्या किया, वो भीड़ को चीरते हुए, And the Bible says she came and touched Jesus. और उस वो क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने यीशु के पास में आया और उसको छुआ उसका कपड़ा। Amen. Amen. Now the Bible says immediately when she touched Jesus, और परमेश्वर का वचन कहता है जैसा ही उसने यीशु को छुआ, the fountain of blood dried up and she felt it in her body that she was healed. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका जो लहू बहा रहा था वो तुरंत सूख गया, जैसा ही यीशु को छुआ वो वहीं पे बंद हो गया और वो चंगा It हो गया। was an instant breakthrough she experienced in her और life.
और वो जो था तुरंत होने वाला ब्रेक थ्रू था. But where did it begin? लेकिन ये कहाँ से शुरू हुआ है? It began when she heard about Jesus. और वो वहाँ से शुरू हुआ जब उसने यीशु के बारे में जब सुना था. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your breakthrough starts as you hear the word. और आपका ब्रेक थ्रू जो है वो कहाँ से शुरू होता है? जब आप यीशु के बारे में सुनते हैं. Amen. Every day if you will hear the word. और आपको हर दिन प्रत्येक दिन आपको परमेश्वर का वचन Every सुनना. day if you will pick up the word of God and you listen to the word, और जब हर दिन आप परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो you will experience breakthrough in your life. और आप अपने जीवन में ब्रेक थ्रू को अनुभव करने शुरू करेंगे. Proverbs chapter 4. और प्रोवर्ब्स का 4 को देखिए, नीति वचन का 4 को In verse 20, the Bible says, और 20 को देखिए. My son, give attention to my word and incline your ears to my saying. Yeah, no problem. Proverbs 4:20. 4 का 20 को हम लोग जाएंगे. We will read 20, 21, 22, and 23. Okay, I'll read it. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them, and health to their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. हाँ, यहाँ पे लिखा है, मेरे बेटे पूरा ध्यान देना मेरे वचन पे और तेरा कान को सचेत रखना जो मैं बोल रहा हूँ, और इसको तेरे आंखों से दूर होने मत देना, और इसको अपने हृदय के बीचों बीच रखना, क्योंकि ये जीवन है जिसने पाया है, और ये जो है तंदुरुस्ती हेल्थ है जो तेरा शरीर के लिए, और तेरा हृदय ना, तेरा हृदय को तेरा विथ डिलीजेंस ना कि ये पूरा अपना पूरा फुल डिलीजेंस के साथ में इसको रखना, क्योंकि ये जो जीवन का स्रोत जो है वो निकलता है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bible says, my son, give attention to my word. और उसने परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मेरा वचन को ध्यान से सुनो. Keep them in, incline your ears to the word of God. और परमेश्वर का वचन को आप सुनो, सचेत रहो. Bible says, don't let them depart from your eyes. और अपने आंखों से ओझेल होने मत दो. Keep them in your heart. अपने हृदय में रखो. Now, when the Bible is talking about your heart, it's talking about your spirit. जब परमेश्वर का वचन में अगर हृदय के बारे में बात कर रहा है तो वो आपका आत्मा के बारे में बात कर Keep रहा है. them in the middle of your spirit. Keep them in the middle of you. और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जो आत्मा आपका हृदय का बीचों बीच में रखिए, आपका अंदर बीचों बीच में रखिए. Amen. Bible says, for they are life to those who find them. क्योंकि जिसने पाया है वो जीवन है बोला है. Amen. Amen. If you have to find it, you have to look for it. और आपने अगर पाया है तो आपको उसको देखना पड़ेगा. Amen. आप It's not, पाने के लिए देखना पड़ेगा. it's not just going to come like that. और ऐसा ही नहीं आएगा, उसके लिए Amen. आपको ढूंढना पड़ेगा. Bible says if you will find the word of God, you will find life. और परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप उसको ढूंढोगे तो आप उसको जीवन को पाओगे बोला है. Think about it. This lady who was suffering for 12 years found life when she heard about Jesus. और ये सोचिए, ये 12 साल से जो औरत जो सफर कर रहा था, ये समस्या में था, उसने जब यीशु का जीवन तब पाया जब उसने यीशु के बारे में सुना. Not just life, but you will find health also, the Bible और says. सिर्फ जीवन नहीं, उसने क्या पाया था? तंदुरुस्ती, चंगाई को भी पाया था. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Quickly turn with me to the book of Joshua. और जोशुआ का पुस्तक पे हम लोग जाएंगे. Joshua chapter 1. और जोशुआ का 1 में हम लोग जाएंगे. Hallelujah. और परमेश्वर का स्तुति हो. Amen. Many times, we Christians, we think, well, Jesus is in my heart. और बहुत लोग सोचता है कि यीशु मेरे हृदय में है. Whether I pick up his word or read about him or not, Jesus is there with me, in me. और बहुत लोग ये बोलता है कि हाँ हम बाइबल को पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन यीशु तो मेरा हृदय में है. But I'm telling you, लेकिन मैं कहता हूँ, if you don't hear about him, और अगर आप यीशु के बारे में नहीं सुन रहा है, you will never see the breakthrough. और आप अपने जीवन में ब्रेक थ्रू को नहीं मिलेगा. Amen. Amen. You will never experience breakthroughs. और आप ब्रेक थ्रू का अनुभव नहीं करेगा. Bible says, blessed are those who hunger and thirst after the righteousness of God. परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो व्यक्ति, आशीषित है वो व्यक्ति जो धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा है. Amen. Amen. Hallelujah. If you're hungering and thirsting after the righteousness of God, अगर आप धार्मिकता के लिए प्यासा और भूखा है तो you are hungering and thirsting after God's word. और परमेश्वर का वचन के लिए आप भूखा और प्यासा. Amen. Amen. Few months ago when we went to Delhi,
और बहुत कुछ महीना पहले मैं दिल्ली पे था We did a conference up there in Pastor Ankit Sajwan's church. और पास्टर अंकित सजवन का वहाँ पे चर्च पे हम लोगों ने जो किया था. So Pastor Ankit was telling us about a man who came to him suffering from AIDS. और वो हम लोगों को बता रहा था कि एक व्यक्ति आदमी है जो आया था जो एड्स बीमार था उसको. So he had he had this report with him that says that he has AIDS. He was a driver, truck driver. और एक ड्राइवर आदमी था उसका रिपोर्ट में पूरा लिखा हुआ था कि उसको एड्स है बोल के. And then Pastor Ankit, he came to Pastor Ankit and told him, I'm suffering from AIDS. Please pray for me. और उसने बोला कि मैं एड्स से सफर कर रहा हूँ और मुझे मेरे लिए प्लीज प्रार्थना कर दीजिए. And so Pastor Ankit told him, every day I want you to read the Bible. और उसने पास्टर अंकित ने बोला कि हर दिन प्रत्येक दिन तुम परमेश्वर का वचन को पढ़ो. Pastor Ankit told him, I'm not going to pray for you. और पास्टर अंकित ने बोला मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं You करूंगा. read the word of God. और वो बोला तुम परमेश्वर का वचन को And so पढ़ो. this man took his word, Pastor Ankit's word, और वो व्यक्ति ने क्या किया पास्टर अंकित का जो वचन को ले लिया माना and every day he read the Bible. और वो हर दिन बाइबल पढ़ता था. I mean, like he read the Bible, whenever he was free, he just read the Bible cover to cover. और वो जब भी उसको समय मिलता था वो एक कवर टू कवर वो पढ़ता था. मतलब शुरुआत से अंत तक पढ़ते रहता था. After some time, और लेकिन कुछ समय के बाद में he found out that he was completely healed. और उसने देखा कि वो पूरा चंगा हो चुका था. Nobody had to pray for him. और उसको किसी को भी प्रार्थना करने का जरूरी नहीं. He just heard about Jesus, और उसने यीशु के बारे में सुना and God healed like that. और परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया. I was teaching in our church about last Sunday also. और ये पिछला संडे में भी और बहुत सारा संडे में भी मैं प्रचार कर रहा था And अपना see, चर्च Nagaland में. is a Christian state. That's और- what we call हाँ, ourselves. देखिए हम लोग ऐसे तो बोलते हैं कि नागालैंड जो है वो एक क्रिश्चियन स्टेट है बोल के. We say like we are like 90+% Christians. और वो लोग बोलता है कि हम मैंने वहाँ पे बोलते हैं कि लोग नागालैंड में कि 90+ वाला क्रिश्चियन है हम लोग. मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज. I mean, like we take it as a matter of pride. और हम लोग इसको लेके बहुत घमंड करता है. But sometimes I look at us Nagas, और जब मैं कभी मैं देखता हूँ नागा आदमी लोगों को and I'm like, what kind of Christian are we? और हम लोग किस प्रकार का मसीह है. We don't even know how to pray. और हम लोगों को प्रार्थना करने तक भी मालूम नहीं है. We don't even know how to read the Bible. और हम लोगों को वचन भी पढ़ने तक भी मालूम Whenever नहीं. we are facing problems, और जब भी हम लोग को समस्या आता है हमारे we जीवन ask में, somebody to pray for और us. हम लोग दूसरा को बोलते हैं प्रार्थना कर दो. We say we say this word a lot. We say like, I'm very weak in faith. और हम लोग क्या बोलता है कि हम लोग बहुत ही कमजोर है विश्वास में. Now see, I was telling our church, और मैं अपना कलीसिया को बोलते रहता है. to say that you are weak in faith और तू ये बोलना कि हम विश्वास में कमजोर है is not it's not something you say in humility. और ये बोलना कोई नम्रता नहीं है. It's something that you should be ashamed of saying. और आपको इस चीज के लिए ये बोलने के लिए आपको शर्म होना पड़ेगा. In Nagamis we say, "Ami do biswas te bishi komjor ase." और नागामीज में बोलता है कि हम लोग बहुत विश्वास में कमजोर है. Even pastors, reverends, they say that. और सोचिए रेवरेंड और पासवान लोग भी बोलता है. Now that should be something that we should be ashamed of saying. और ये चीज तो बोलने के लिए शर्म करना चाहिए. But rather we are like, we take it as a word of, we say it, we say that, we are humbling ourselves by saying that. और वो लोग सोचता है कि हम लोग ऐसे बोल के अपने आप को बहुत नम्र कर रहा है. No, it's not. लेकिन ये ऐसा नहीं है. We don't even know how to pray. और हम लोगों को अभी तक भी मालूम नहीं कैसे प्रार्थना करना है. Prayer centers are popping up like mushrooms. और प्रेयर सेंटर इसलिए बहुत ज्यादा खोल रहा है. I'm not against prayer centers. देखिए मैं विरोध नहीं हूँ प्रेयर सेंटर का. But everywhere prayer centers. लेकिन हर जगह प्रेयर सेंटर है. Hundreds of prayer warriors. और 100 प्रेयर वॉरियर्स. They call themselves prayer warriors. और वो लोग अपना आपको प्रेयर वॉरियर बुलाता है. Giving prophecy left and right. और भविष्यवाणी एकदम इधर उधर पूरा देते रहता है. Contradicting the word of God. और लेकिन परमेश्वर का वचन को विरोध करता है. What's happening? और ऐसा ही होता है. That just shows that, like, there's nothing to boast in us calling ourselves a Christian state. और ये कोई मतलब घमंड करने का बात ही नहीं है कि हम लोग क्रिश्चियन स्टेट है बोल के. We have failed to live like one. और हम लोग जो है हम लोग हार मतलब हम लोग क्या बोलता है फेल को क्या बोलता है हार गया. मैंने हम लोग जीने के लिए वो परमेश्वर का वचन का आधारित. Because we never give priority to God's word. परमेश्वर का वचन को हम लोग क्या बोलते हैं प्रायोरिटी नहीं देने का. We don't hear of Jesus enough. और हम लोग यीशु के बारे में ज्यादा नहीं सुनने के कारण Amen. We are not hearing.
और हम लोग नहीं सुन रहा है. You need prayer, you send 5,000 rupees and say, pray for my family. और क्या कहता है, अगर आपको प्रार्थना चाहिए तो 5,000 भेज देता है और बोलता है कि मेरा परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए. Come on, are you trying to buy God? क्या आप परमेश्वर को खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है क्या? Come on. We have a relationship with our God. हमारा परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता है. We have God's written word with us. और परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है हमारे पास में. But we are living defeated life because we are not using this book. और हम लोग इसलिए हारा हुआ जिंदगी जीते हैं क्योंकि हम लोग ये किताब को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे. We are not reading enough. We are not hearing enough. और हम लोग ज्यादा पढ़ भी नहीं रहा है, सुन भी नहीं रहा है इसलिए. Bible says when she heard about और Jesus, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस औरत ने जब यीशु के बारे में सुना the breakthrough began from there. और वहां से उस ब्रेक थ्रू होना शुरू हो गया. Amen. So Pastor Ankit told me that, told us, we were sitting down having dinner, and Pastor Ankit said, yeah, that man completely healed. I didn't even pray for him. और वो पास्टर अंकित बता रहा था कि उस व्यक्ति जो है पूरा तंदुरुस्त हो गया, हमने उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया. And so the man got healed. और जब वो चंगा हो गया, He does not drive trucks anymore. और वो ट्रक भी चलाना छोड़ दिया. It seems you started a YouTube channel. और उसने अपना YouTube चैनल खोल लिया. And then he would repost whatever Pastor Ankit would post. और जो भी पास्टर अंकित जो प्रीच करता है वो चीज को फिर से वो पोस्ट कर देता And है. the man is making 70,000-80,000 rupees every month. और वो क्या है, पास्टर अंकित का जो वीडियोस लोग आता है ना, चर्च का जो ऑफिशियल वीडियो को वो क्या करता है, वहां से लेता है और अपना फिर YouTube चैनल में डाल के वो 70,000-80,000 महीना का खा रहा है. Imagine he's got over 1 lakh followers, it seems. Over 1 lakh followers. और उसका जो फॉलोवर्स है लाख है बोला है. Think about that for a moment. और सोचिए थोड़ा कुछ पल के लिए. Amen. All he did was read the word of God and hear about Jesus. और क्या है कि वो लोग पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Key lies, our breakthrough lies in when she heard about Jesus. जो कुंजी जो है ब्रेक थ्रू का वो जो है जब उसने यीशु के बारे में सुना. Amen. Now, Joshua chapter 1, और यीशु का एक verse 8, और 8 में, Bible says, and this book of the law shall not depart from your mouth. और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो व्यवस्था का किताब है ये तुम्हारे मुंह से दूर नहीं होना है. But you shall meditate in it day and night. और लेकिन तुम इस पे अध्ययन करो दिन और रात. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Keep the word of God in your mouth. I'm telling you. और परमेश्वर का वचन जो है आपके मुंह पे रखिए. There is nothing more powerful than the word coming out of your mouth. और उस मतलब आपका मुंह से जितना परमेश्वर का वचन जब निकलता है उससे ज्यादा सामर्थ्य और चीज कोई नहीं But है. the word will not come out of your mouth until you pick up the word of God and put it before your eyes. और ये तब आपका मुंह से तब तक वो परमेश्वर का वचन नहीं आएगा जब तक आप परमेश्वर का वचन को आपका आंख में नहीं रखेंगे. Until you are full of the word, your mouth is not going to speak. जब तक आपका हृदय जो वो पूरा परमेश्वर का वचन से नहीं भरेगा तब तक वो आपका मुंह से नहीं निकलेगा. Quickly, keep your fingers over here and go to the book of Matthew. और मत्ती का पुस्तक पे जाएंगे हम लोग. Amen. Amen. Matthew chapter 12. और 12 पे जाइए. Look over here in verse 34. और 34 में आप लोग देखेंगे. Towards the end of verse 34, Bible says, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. और ये 34 का जो अंतिम जो भाग है वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो क्या है कि आपका हृदय में जो बहुताई का आपका हृदय से मुंह पे आप बोला जाता है. Amen. Hallelujah. So how will your mouth keep speaking? और आपका मुंह कैसे बोलते रहेगा? If you are full of the word. और जब आपका हृदय जो है वो परमेश्वर का वचन से भरा होगा. Bible says the book of this law, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये व्यवस्था का पुस्तक जो है वो तुम्हारे मुंह से दूर ना होना पाए और इस पे दिन रात अध्ययन करो. That you may observe to do according to all that is written in it. और ताकि आप इसको अच्छी तरह से ये वो करके अब इसके आधारित आप कर सके. Amen. Amen. Now look at the last part. और देखिए पिछला वाला भाग को देखिए. For then. और उसका बाद. Everybody say uska baad. उसका बाद. When? उसका बाद जब उस कब.
After you do the first part. जब आप ऊपर वाला भाग को करेंगे, Amen. After you meditate on the word of God. और जब आप परमेश्वर का वचन पे अध्ययन After करेंगे, you keep speaking the word of God. जब आप परमेश्वर का वचन को निरंतर बोलेंगे, For then तब जाके you will make your ways prosperous. तब जाके आप अपना वो वेज को आप क्या करेगा, उन्नति होगा आपका। And then you will have good success, Bible says. और तब जाके आपको एक अच्छा सक्सेस मिलेगा, उन्नति मिलेगा। Everybody wants prosperity. हर कोई उन्नति चाहता है Everybody wants success. और हर कोई उन्नति चाहता है। Nobody wants to meditate. सक्सेस, But nobody wants to meditate on the word. लेकिन ज्यादातर कोई भी नहीं चाहता है कि वो परमेश्वर के वचन पे Nobody wants to hear about Jesus. और कोई भी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के यीशु के बारे में Our सुने। victory comes through Jesus. हमारा जो विक्ट्री है वो यीशु के द्वारा ही आते हैं। Amen. आमीन। Bible says when she heard about Jesus, और जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने परमेश्वर यीशु के बारे में सुना, that's when her breakthrough came. और तब उसका ब्रेक थ्रू आया। When will your breakthrough come? आपका ब्रेक थ्रू कब आएगा? When you start hearing about Jesus. जब आप यीशु के बारे में सुनना शुरू करेंगे। Amen. Amen। Read the word. परमेश्वर का वचन को पढ़िए, Study the word. परमेश्वर का वचन को अध्ययन कीजिए, Listen to the word. परमेश्वर का वचन को सुनिए। Amen. Amen. Hallelujah. When you Hallelujah. start practicing the word, जब आप परमेश्वर के वचन को आप प्रैक्टिस करेंगे, breakthrough is there knocking on your door. और ब्रेक थ्रू जो है वो आपका दरवाजा में खटखटाएगा। Amen. Amen। Don't run to the prayer centers. और प्रेयर सेंटर पे मत दौड़ते रहिए, Amen. Amen। Run to God. परमेश्वर पे परमेश्वर के साथ Run to his word. परमेश्वर का वचन में दौड़िए। Your answer lies right here. और आपका जो उत्तर है ये यहाँ पे है, परमेश्वर के वचन I पे will है। end with this saying. और मैं यहाँ पे अंत करता हूँ ये बोलकर, Long time ago, I heard a man of God say this to me once. और बहुत समय पहले परमेश्वर का व्यक्ति जो मुझे कहा, He said, if your Bible is falling apart, और अगर आपका ये जो बाइबल जो है वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, your life will not. लेकिन आपका जिंदगी नहीं होगा। Amen. Amen। Hallelujah. If you are using the Bible, अगर आप परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं your बाइबल, life will stay intact. और आपका जीवन जो इस पे टिका रहेगा। But if your Bible is brand new after 10 years, अगर आपका 10 साल में भी आपका बाइबल जो पूरा ब्रांड न्यू है, guarantee your life will be falling apart. और तो है आपका जीवन जो है वो गारंटी है वो चूर हो जाएगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So keep hearing about Jesus. और आप परमेश्वर यीशु के बारे में निरंतर सुनते रहिए। Amen. That's the beginning of your breakthrough. और ये शुरुआत है आपका ब्रेक थ्रू का। Amen. Amen। Thank you so much. Yeah. Thank you। धन्यवाद। So praise the Lord। Amen। Thank you pastor। And we are blessed। Amen। ये पहला सेशन था हम लोग, और दूसरा सेशन भी होने वाला है, तीसरा सेशन भी होने वाला है। आप लोग मत जाइएगा, आज यहीं पे खाना आप लोगों को मिलेगा। Amen। खाना भी हम लोग पका रहा है ना, वो लोग लेके आएगा समय में। सेकेंड सेशन का अब ये अभी हम लोग छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद में हम लोग सेकेंड सेशन को हम लोग पिकअप करेंगे ना। चलिए, थैंक यू। चलिए। Amen।